Welcome everyone, this is Suresh Naryal and you are watching Naryal English classes. Today in this video I am taking an important topic of English grammar and it is about determiners. So we are taking its second part today. Its first part I have already covered in my previous video and that was about articles A and the. Today we are taking its second part and it is about numerical determiners. So the numerical determiners are also called numbers or numeral determiners. So let us start. What are determiners? डिटर्मिनर्स को डिफाइन कर लेते हैं. डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स दैट गो बिफोर अ नाउन. डिटर्मिनर वो शब्द होते हैं जो हम संज्ञा से पहले लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई. हियर द वर्ड आई स्टैंड्स फॉर अ नाउन एंड द नंबर वन इट स्टैंड्स फॉर द डिटर्मिनर. सो वी कैन से दैट अ डिटर्मिनर इट ऑलवेज कम्स बिफोर अ नाउन. डिटर्मिनर की पहचान ये है कि डिटर्मिनर हमेशा नाउन से पहले लिखा जाएगा. Now let us know the types of numerical determiners. They are of three types: definite numbers, indefinite numbers and distributed numbers. अब definite numbers वो होंगे which are definite, जिनकी संख्या निश्चित होगी. For example 1, 2, 3, first, second, last, single, etc. Indefinite numbers are those which are not definite. For example, some, many, all, few, several, etc. Distributive numbers are each, every, neither, either. So these are the example of numbers. Now 1, 2, 3, these numbers are called cardinal numbers, and first, second, these numbers are called ordinal numbers. So let us know how to use them. डेफिनेट न्यूमरल डिटर्मिनर्स आर यूज्ड बिफोर काउंटेबल नोन. जो हमने फर्स्ट टाइप लिखी थी न्यूमेरिकल डिटर्मिनर्स की, जिसमें डेफिनेट न्यूमरल डिटर्मिनर्स थे, तो इनका यूज़ हमने कहाँ पर करना है डेफिनेट नंबर्स का. दे आर यूज्ड बिफोर काउंटेबल नोन. नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द कंसेप्ट ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नोन in order to understand the topic thoroughly. So let us know the countable noun first. Countable means which can be counted, जिनको हम गिन सकते हैं. For example, look at the picture here. Here are 3 balls. You can count them. So these balls are countable nouns. Similarly, you can count the pen, you can count the book, you can count the apples. So they are countable nouns. Now, what are uncountable nouns? Uncountable nouns are those which can't be counted, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हेयर इज अ पिक्चर फॉर यू. सो कैन यू काउंट राइस? नहीं, आप इनको नहीं गिन सकते. सो दीज आर अनकाउंटेबल नॉन्स. तो अनकाउंटेबल नॉन हो गए आपके राइस, मिल्क, शुगर, वाटर एट्सेट्रा, क्योंकि इनको आप काउंट नहीं कर सकते. तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नॉन. सो डेफिनेट न्यूमरल डिटर्मिनर्स आर यूज्ड बिफोर काउंटेबल नॉन. अब आपने एक चीज़ दिमाग में नोट कर लेनी है कि जो डेफिनेट न्यूमरल डिटर्मिनर्स होते हैं उनको हम काउंटेबल नॉन से पहले यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ गिव मी 1 एप्पल. अब 1 जो है ये आपका डेफिनेट नंबर है और 1 को आप काउंटेबल नॉन एप्पल से पहले यूज़ कर रहे हैं. सिमिलरली इन द सेकंड एग्जाम्पल, द लास्ट चैप्टर वाज वेरी इंटरेस्टिंग. हियर द वर्ड चैप्टर स्टैंड्स फॉर नाउन एंड द वर्ड लास्ट इट स्टैंड्स फॉर द डेफिनेट न्यूमरल डिटर्मिनर्स. नाउ लेट अस मूव टू indefinite numeral determiners. Indefinite numeral determiners denote the indefinite number. ये indefinite number को denote करते हैं, दर्शाते हैं. इसमें आपका sum आएगा. sum का आप कहाँ पर यूज़ करेंगे? where to use sum? There are some rules. Sum means a small quantity or a small number, so it is used before countable and uncountable noun. अब इस चीज़ को आप नोट कीजिए कि सम जो होगा आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल नॉन दोनों से पहले यूज़ हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सम एप्पल्स फॉर यू. सो हेयर the word apples it stands for the countable noun. Similarly, in the second example, there are some girls in the room. So here the word girl stands for the countable noun. And in the third example, she put some water in the glass. So here the word water it stands for the uncountable noun. So we can see that we can use sum for countable as well as for uncountable noun. Let us move to next category.
यूज ऑफ मैनी। अब मैनी का यूज कहां पर करेंगे? सो मैनी इज यूज टू डिनोट लार्ज नंबर एंड बिफोर काउंटेबल नोन एज। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि मैनी को आप कहां कहां पर यूज करेंगे। एक तो आप इसको नेगेटिव स्टेटमेंट में यूज कर सकते हैं। नेगेटिव स्टेटमेंट मीन जहां पर सेंटेंस में नोट का यूज होगा तो वहां पर हम मैनी का यूज करेंगे। नंबर 1, आई हैव नॉट सीन मैनी पिक्चर्स। तो यहाँ पर आप नोट यूज कर रहे हैं, दिस इज नेगेटिव स्टेटमेंट कि मैंने ज़्यादा पिक्चर्स नहीं देखी हैं। तो यहाँ पर आप मैनी डिटर्मिनर का यूज कर रहे हैं एंड द पिक्चर इट इज काउंटेबल नाउन। सिमिलरली वी कैन आल्सो यूज मैनी फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल, आर देयर मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी? सो दिस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो जहाँ पर आप प्रश्न पूछेंगे वहाँ पर भी आप मैनी का यूज करेंगे। तो अब मैनी और सम के बीच आप डिफरेंस देखिए। सम का यूज आप करेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नोन दोनों में कर सकते हैं, लेकिन सम का यूज करेंगे आप पॉजिटिव स्टेटमेंट में। ऑन द अदर हैंड आपका जो वर्ड मैनी है विच इज यूज्ड एज अ डिटर्मिनर, इसको आप नेगेटिव स्टेटमेंट में भी यूज कर सकते हैं और इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट में भी यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने नोट करनी है कि वी कैन यूज सम फॉर द पॉजिटिव स्टेटमेंट्स और अफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड मैनी फॉर द नेगेटिव स्टेटमेंट्स एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट यूज ऑफ डिटर्मिनर, ऑल। ऑल डिटर्मिनर का यूज आप कहाँ पर करेंगे? इट इज़ यूज बिफोर प्लूरल नाउन। जहाँ पर नाउन प्लूरल होगा वहाँ पर हम ऑल का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द बॉयज आर प्रेजेंट टुडे। तो यहाँ पर हम ऑल डिटर्मिनर का यूज़ करेंगे। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट इनडेफिनेट न्यूमरल्स हैं जो कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के नाम से जाने जाते हैं। सो फ्यू मीन्स हार्डली एनी, इट हैज़ अ नेगेटिव मीनिंग। तो इसमें फ्यू वर्ड जो है इसको हम नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। सो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, इट मीन्स आई हैव नो फ्रेंड्स बिकॉज few means hardly any. So a few it is used in the positive sense. a few को हम कहाँ पर यूज़ करेंगे? जब हमने पॉजिटिव मीनिंग दर्शाना है। सो few के बाद आपका आएगा a few. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। सो इट मीन्स आई हैव सम फ्रेंड्स दो नॉट मैनी। मेरे ज़्यादा मित्र तो नहीं हैं लेकिन कुछ हैं। तो जहाँ पर आपने पॉजिटिव मीनिंग दर्शाना है वहाँ पर आप अ फ्यू का यूज़ करेंगे। आफ्टर दैट द फ्यू, कहाँ पर इसका यूज करना है? द फ्यू मीन्स नॉट मैनी वट ऑल ऑफ देम, यानी कि ज़्यादा तो नहीं परंतु जो भी है वो सारे आपने उनको काउंट करना है। दैट इज़ द फ्यू। फॉर एग्जाम्पल, आई लॉस्ट द फ्रेंड्स आई हैड, कि मैंने वो मित्र खो दिए जो मेरे पास थे। सो हेयर द डिटर्मिनर द फ्यू मीन्स all. It means I have lost all friends. No, I have no friends. So it was the use of few, a few and the few. Now let me brief these three determiners: few, a few, the few. Few stands for the negative meaning, a few stands for positive meaning, and the few it stands for not many, what all of them. Now let us move to next determiner, which is several. Several, it is used to denote two or more in number, what less than many. For example, several students missed their class. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्लास मिस कर दी। तो इनकी संख्या दो या दो से ज़्यादा हो सकती है। एक चीज़ आपने नोट करनी है, सम से ज़्यादा होगा सेवरल और सेवरल से ज़्यादा होगा मैनी। Now last type of the numeral determiner is distributive numeral determiners. Now distributive numerals में आएगा आपका each, every, neither, either. So where to use each? It is used in speaking of two or more persons or things when the number is definite and limited. तो each का यूज़ हम वहाँ पर करेंगे जहाँ पर हम दो या दो से ज़्यादा persons और things के बारे में बात कर रहे होंगे और उनकी जो संख्या होगी that will be definite, वो एक निश्चित संख्या होगी। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 4 एट्सेट्रा। तो वहाँ पर हम each का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 4 स्टूडेंट्स वर सिटिंग ऑन ईच डेस्क। तो यहाँ पर हम ईच डिटर्मिनर का यूज़ कर रहे हैं विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल, और यहाँ पर ये डेफिनेट नंबर को शो कर रहा है विच इज़ 4। द स्टूडेंट्स आर 4, तो 4 नंबर है स्टूडेंट्स का। तो यहाँ पर हम ईच डिटर्मिनर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज़ एवरी।
नाउ वेयर टू यूज एवरी, एवरी का यूज कहां पर करना है? इट इज यूज्ड इन स्पीकिंग टू और मोर पर्सन्स और थिंग्स व्हेन द नंबर इज इनडेफिनिट। अब ईच और एवरी में फर्क देखिए। ईच का यूज हम वहां पर कर रहे थे जहां पर नंबर था डेफिनेट। अब एवरी का यूज हम वहां पर करेंगे जहां पर नंबर जो होगा वो डेफिनेट नहीं होगा, इट विल बी इनडेफिनिट, इट विल बी अनलिमिटेड। तो वहां पर हम एवरी का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एवरी मैन शुड डू हिज ड्यूटी, हर आदमी को अपना काम करना चाहिए। अब कितने आदमी, उनकी संख्या यहाँ पर शो नहीं की गई है, तो यहाँ पर हम एवरी डिटर्मिनर का यूज करेंगे। वंस अगेन आई ब्रीफ, ईच का यूज हम करेंगे जहाँ पर नंबर डेफिनेट होगा, एवरी का यूज करेंगे जहाँ पर नंबर डेफिनेट नहीं होगा। नेक्स्ट इज ईदर, इट इज़ यूज फॉर वन आउट ऑफ टू थिंग्स। जब आपके पास चॉइस होगी दो में से एक की, तो आप ईदर वर्ड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन हैव ईदर कॉफ़ी और टी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है, आप दो में से एक चीज़ चूज करेंगे, तो यहाँ पर हम ईदर का यूज करेंगे। देन नीदर, इसको आप नाइदर भी पढ़ सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर नो वन आउट ऑफ टू थिंग्स और पर्सन्स। जब आपने दो चीज़ों में से एक को भी नहीं दर्शाना है, तब आप नाइदर का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नाइदर ऑफ द टू बॉयज इज रिच, दोनों में से एक भी लड़का अमीर नहीं है। तो ये तो था आपका डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल डिटर्मिनर्स के बारे में, जिसमें ईच, एवरी, ईदर, नीदर आया। ईच आप डेफिनेट नंबर के लिए यूज कर रहे थे, एवरी आप इनडेफिनेट नंबर के लिए यूज कर रहे थे, ईदर दो में से एक के लिए, नीदर दो में से किसी के लिए भी नहीं। सो दिस फिनिशेज योर सेकंड पार्ट ऑफ द डिटर्मिनर। सो इफ यू हैव understood it fully, then here is an exercise for you to check your knowledge. So let us do क्वेश्चन नंबर 1, दे हैव डैश वर्क टू डू, मैनी या सम, इन दोनों में से कौन सा भरें? तो यहाँ पर सम भरा जाएगा। क्यों भरा जाएगा सम? क्योंकि सम के लिए हमने रूल पढ़ा था, इट इज़ यूज्ड फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। मैनी का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर प्लूरल नाउन हो, तो वर्क जो है वो प्लूरल नाउन नहीं है, तो यहाँ पर आपका सम भरा जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी हैज़ नॉट डैश ब्लू साड़ीज़, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? मैनी भरें या सम भरें? तो यहाँ पर साड़ीज़ जो है ये आपका प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ आप मैनी डिटर्मिनर जो है वो भरेंगे। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस बनेगा, शी हैज़ नॉट मैनी ब्लू साड़ीज़। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही रेड डैश बुक्स ही हैड, उसके पास जो किताबें थी वो उसने पढ़ ली। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इन तीनों में से कौन सा भरें? तो यहाँ पर द फ्यू भरा जाएगा, क्योंकि उसने वो किताबें पढ़ ली जो उसके पास थी। हमने फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का रूल पढ़ा था कि फ्यू मीन नेगेटिव, अ फ्यू मीन सम, और पॉजिटिव के लिए द फ्यू मीन नॉट मैनी, व्हाट ऑल, तो यहाँ पर द फ्यू भरा जाएगा। नेक्स्ट नंबर 4 पे, आई डू नॉट हैव डैश फ्रेंड्स, तो मच भरें या मैनी? तो यहाँ पर नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए हमने रूल पढ़ा था कि मैनी का यूज़ किया जा सकता है, तो यहाँ पर हम भरेंगे मैनी, आई डोंट हैव मैनी फ्रेंड्स। देन लास्ट एग्जाम्पल, डैश ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ 3 बुक्स, तो इस सेंटेंस को हम ऐसे कंप्लीट करेंगे, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ 3 बुक्स। अब एवरी क्यों नहीं इसमें लिखेंगे? क्योंकि एवरी जो है वो इनडेफिनेट नंबर के लिए यूज़ होता है, जबकि ईच जो है वो डेफिनेट नंबर के लिए यूज़ होता है, और यहाँ पर 3 नंबर जो है इट इज़ डेफिनेट नंबर। सो दिस फिनिशेज योर सेकेंड पार्ट ऑफ द डिटर्मिनर। इफ़ यू लाइक्ड इट, then subscribe to my YouTube channel, hit the like button and share to your friends. So thank you.